So yesterday we have seen the architecture of agile methodology. So today I will give you what you have learned yesterday and continue with today's topic. Okay. So there are different types of agile methodology. Instead of in that we are working in Scrum agile methodology. So in Scrum agile methodology we are working in sprint. Okay. Whatever the requirement from the client are which will be delivered or we will work in that work for that requirement in sprints, and we will deliver or we will release that requirement to client whenever the client will give us the approve to give the release to that application or that requirement, right? So we are working on Scrum agile methodology. So yesterday we have seen agile architecture. So client means we have stakeholder which will have requirement. So that requirement will be gathered and converted into the product backlog. Product backlog means whatever the customer's requirements are, that will be converted into the product backlog. So that will be gathered. To convert that product backlog into the sprint backlog, we have to do the estimation. So there are three parameters needed to convert a product backlog into the sprint backlog. So for that we have knowledge, efforts, and complexity. As per the task, as per the requirement, what are the what is the knowledge required to complete that development and coding for that requirement. Then efforts, how much time or efforts we need, and knowledge, effects, and complexity, how complex that requirement is. So depends on these parameters. We have limited period of 2 weeks or 3 weeks in one sprint. So depend on this, we are converting product backlog into the sprint backlog. So whatever the days we have, suppose we are working in sprint, so we are working in 2 weeks, right? So out of 2 weeks, Saturday, Sunday are off. So we have 10 days. So in that 10 days, we have to work or deliver whatever we have to do. So we are working on this requirement. We have to do coding and testing also. So that part will be completed once we ready with the sprint backlog. So there are sprint, as I said, duration of the sprint is like 1 2 means 1 week, not 1 week actually. It's starting from 2 week, 3 week, or 1 month also, depending on the project you are working in, and depending on the client's requirement. Whatever they want, we will convert one sprint into 2 or 3 weeks or 4 weeks. Okay. So user story we have in every sprint. In sprint backlog, we have user stories. So user stories means whatever the requirement is, we have given in terms of user stories. So there is no SRS document. Every requirement will have description about the whatever the requirement is and its acceptance criteria. Acceptance criteria means what we have to do and what we don't have to do. So this will be have in user stories. After that, designer after the user stories will assign to every users. So there are developer, testers are available. So depends on that, developers and testers. Developer will do coding and tester will do testing, and designers will start their task as designing. So every task will be designed, every task will be given to that developer or tester, and they will work on their individual task. Okay, as a tester we have two mainly tasks, that is test case designing and test case execution. Whatever the requirement is, so suppose login page is there. So if you want to test it as a tester, then we have to write a test cases. Okay, so we have to write test cases on that. So after the development, after the coding is completed, we have to test that application. So to give that knowledge or to test that application or that feature, we are going to write the test cases when developer is writing coding. Okay, is it clear? Hello, hello, is it clear now? So suppose what are the test cases are? So test cases are like this. So I want to test the sign in functionality, then I have to write uh, the numbers here, whatever the username or email ID or mobile number is there. Then after that I will click on continue. I have to write password here. So to test the feature, test the requirement here, I have to
write some test cases. Okay, so these test cases we need to cover all the functionality of the application. Here we have create your Yo account, create your Amazon account, we have sign in option, we have reset password option. So everything we need to cover using the test cases, that are test cases. Okay, we will see later what are the test cases. Okay, in agile, name of people. So client is known as stakeholder, which will have requirement. Business analyst will known as product owner. Designer will already designer. Developer will call developer. Tester will call testers, and project manager is called as scrum master. Okay, so what is the role of scrum master here? So he will check each and every aspect of the project. Where are we are developing something, so is there any problem any developer or tester is having? We are in our right track to develop our application, and in 2 weeks we will deliver this product to develop client. That all possibility or that all will be controlled by scrum master, means he will check each and everything. Okay, just like if there is suppose ring master is there in circus, so what is the role of ring master? Mm, control. तो कंट्रोल करना है उसे, देखना है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना टास्क करने में। और जो कुछ भी हमारा 2 वीक का स्प्रिंट है, जो एस्टिमेशन है, ड्यूरेशन है, जिसमें हमें गिवन टास्क है, जो कुछ काम करना है हमें, तो वो काम हमें उस टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही स्प्रिंट शुरू होगी, ठीक है, जैसे कि हमने स्प्रिंट 1 देखा था। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंट 1 शुरू हो रही है, तो स्प्रिंट 1 शुरू हो रही है तो इसके लिए क्या है, 11th जुलाई से शुरू होने वाली है, 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, हाँ सर। 11 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो इसमें कुछ मीटिंग्स है। ठीक है, मीटिंग्स है अजाइल में। ठीक है, जिसे सेरेमनीज भी बोली जाती है। तो इन मीटिंग्स को हम लोग देखेंगे कि ये मीटिंग्स कब होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मीटिंग इन अजाइल मीटिंग, सो दे आर कॉल्ड एज अजाइल मीटिंग, जो अजाइल में होगी। जैसे स्प्रिंट शुरू होने वाली है तो ये मीटिंग जो होगी 11 से 22। ठीक है, जो आपका 11 से 22 इस ड्यूरेशन में कुछ मीटिंग्स होने वाली है। तो हर स्प्रिंट में कुछ ना कुछ मीटिंग होने वाली है। सो दिस आर द 5 मीटिंग्स। ओके, तो इसका मोटिवेशन क्या है, हम लोग इसे क्यों, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोगों का क्या बिहेवियर है, इस मीटिंग कब ली जाती है, स्प्रिंट पे कितने बार रिपीट होती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मीटिंग। ग्रूमिंग सेशन, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्क्रम मीटिंग जिसे हम सिंकअप और डेली स्टैंड अप कॉल बोला जाता है। उसके बाद में स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये मीटिंग से देखते हैं कि ये मीटिंग्स एक्चुअली होती क्या है और इन्हें क्यों लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही स्प्रिंट शुरू होने वाली है, जैसे कि हमें समझो मेरे आज स्प्रिंट शुरू हो गई। ठीक है, तो 11th ऑफ जुलाई है, दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंट, राइट, है कि नहीं? तो इस डे में क्या किया जाएगा, एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग की जाएगी। दिस इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्प्रिंट। ठीक है, लिख के लो, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग। इसमें क्या होता है, जितने भी स्प्रिंट बैकलॉग आपने किए गए हैं, अभी जो भी रिक्वायरमेंट इस स्प्रिंट के अंदर काम करेंगे उसे हम स्प्रिंट बैकलॉग बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उतने भी रिक्वायरमेंट क्या किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे टू ऑल द कोर मेंबर्स। अभी देखो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग्स है,
तो हमने स्प्रिंट की प्लानिंग पहले से ही करके रखी है, यूजर स्टोरीज एंड आर स्प्रिंट बैकलॉग हमने डिसाइड किए थे। तो स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर यूजर स्टोरीज रहेंगी, यूजर स्टोरीज रहेंगी, लेकिन इस यूजर स्टोरी में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी। सो ये सब इंफॉर्मेशन समझो, हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट है, हम लोग 5 रिक्वायरमेंट्स के ऊपर इस स्प्रिंट में काम करने वाले हैं। तो 5 रिक्वायरमेंट के यूजर स्टोरीज रहेंगे। तो हमारे इस मीटिंग में क्या होगा कि हम लोग जितने भी रिक्वायरमेंट्स गैदर किए गए हैं, ठीक है, इस मीटिंग को हम लोग फर्स्ट डे लेंगे, जितने भी रिक्वायरमेंट है इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इन मीटिंग में कौन कौन होता है, ये हाफ एन आवर या 1 आवर तक चलने वाली मीटिंग है, जिसमें अवेलेबल रहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डिजाइनर, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस स्प्रिंट में काम करने वाले हैं तो हमें पता है कि अभी मुझे कौन से टास्क के ऊपर काम करना है, नहीं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है और हम एक्सपेक्ट क्या करने वाले हैं इस स्प्रिंट में, हमें क्या डेवलप करना है, तो ये करने के लिए हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग लेते हैं, जो कि हर स्प्रिंट में एक ही बार होती है और वो होती है फर्स्ट डे में, ठीक है। तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि डिसाइड द टाइम लाइन, हर जो यूजर स्टोरी है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि यह बनाने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उस यूजर स्टोरी को, वो यूजर स्टोरी है क्या, ठीक है, व्हाट इज दिस यूजर स्टोरी और रिक्वायरमेंट वी कैन से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे, उसका एक्सेप्टेंस और डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया है। ये जो है जिसने भी ये यूजर स्टोरी क्रिएट की होगी, ठीक है, नहीं, वो क्या करेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा यूजर स्टोरी, he will explain the user story to us and हम इसमें कौन सब कोर टीम मेंबर्स है, तो वो क्या करेगा, हम लोगों को एक्सप्लेन करके देगा एंड वी कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट रिक्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे। जैसे अगर कल मुझे इस रिक्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा, है ना, तो उस टाइम पे मुझे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरी, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उसके ऊपर हमें एक्सप्लेन किया जाएगा और वो उसके लिए हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसने भी वो यूजर स्टोरी पे लिखी होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर जो होता है वही ये यूजर स्टोरी लिखता है, ठीक है, और जिसने भी यूजर स्टोरी लिखा होगा वो हमें एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सो इस यूजर स्टोरी के ऊपर हम लोगों के पास 5 रिक्वायरमेंट है, 5 रिक्वायरमेंट के पूरे यूजर स्टोरी जो है हमें एक्सप्लेन की जाएगी। अभी समझो, एक रिक्वायरमेंट के ऊपर साइली है जो एक डेवलपर है और राम जो है ये एक टेस्टर है, उस यूजर स्टोरी पे काम कर रहा है। तो साइली विल टेल अबाउट कि इसे डेवलप करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। जैसे वो बोले कि मेरे को 8 आवर्स लगेंगे, ठीक है, एस्टिमेशन दे रहे हैं हम लोग इस, ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग में 8 आवर्स मुझे लग सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और राम बोलेगा कि इससे मुझे राइटिंग टेस्ट केसेस और एग्जीक्यूटिव टेस्ट केस करने के लिए मुझे 7 आवर्स लगेंगे, ठीक है।
तो हर तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि किस रिक्वायरमेंट पे हम काम करने वाली है, और इस स्प्रिंट का ड्यूरेशन कितना रहेगा, मतलब इस स्प्रिंट का ड्यूरेशन तो 10 डेज रहेगा, लेकिन इस मीटिंग का ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स to 1 hour. So everything is clear about this? किसी कुछ क्वेश्चंस है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में? ओके, आई एम कंसिडरिंग इट एज नो. उसके बाद में जब आप सेकेंड डे होता है, ठीक है, फर्स्ट डे क्या करोगे आप, एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो जाएगी आपकी. स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप 5 रिक्वायरमेंट पे राइट टेस्ट केसेस और एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस का टास्क कर रहे हो. आपके टीम में जो है 3 टेस्टर्स है या फिर 2 टेस्टर्स है सब कुछ, ठीक है. तो 2 टेस्टर के लिए कुछ ना कुछ अलग से टास्क रहेगा. कोई 2 टेस्टर है, उसमें से एक टेस्टर जो है वो 3 रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है और कोई 2 रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है. कोई 2 के ऊपर काम कर रहा है, कोई 3 के ऊपर काम कर रहा है. तो जब आपका एक्चुअल टास्क मतलब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, स्प्रिंट के अंदर जाओगे और उस स्प्रिंट के अंदर जाके देखोगे कि मुझे कौन कौन से यूजर स्टोरी असाइन है, मुझे कौन से रिक्वायरमेंट्स असाइन है और मुझे उस रिक्वायरमेंट में क्या करने हैं, ठीक है. व्हाट आई हैव टू डू इन दिस स्प्रिंट, ठीक है. नहीं, मुझे कौन कौन सा टास्क, मुझे कौन कौन सा यूजर स्टोरेज जो है वो असाइन किए गए हैं. तो जैसे फर्स्ट डे है, आपने ये भी देख लिया कि मुझे कौन कौन से असाइन है. तो इसके बाद में आप क्या करोगे, एक रिक्वायरमेंट को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे. एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद अभी एक्चुअली आपका काम शुरू हो गया आज से, ठीक है. जैसे आपका स्प्रिंट प्लानिंग शुरू हो जाएगा, आप लोग देखोगे कि मुझे कितने रिक्वायरमेंट है और उसमें से एक रिक्वायरमेंट को आप सेलेक्ट करोगे. एज अ टेस्टर क्या टास्क रहेगा आपका, हेलो, राइटिंग टेस्ट केसेस रहेगा. उसके बाद में क्या रहेगा, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस रहेगा ऑन दैट रिक्वायरमेंट, ठीक है. अभी मेरे पास ऐसे 3 रिक्वायरमेंट्स है. ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट है. अभी इन तीनों में से आपका कोई डेवलपर रहेगा, उसको प्रायोरिटी 1 दिया है इस रिक्वायरमेंट के लिए. उसका कोड कंप्लीट होने वाला है कल तक. टुमारो ही विल कंप्लीट कोडिंग टिल टुमारो, ठीक है. कल तक इसका कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा. तो कल जब वो हमें नई रिक्वायरमेंट देगा उसके एंड से डेवलपमेंट करके, तो हमें इसके ऊपर टेस्टिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास टेस्ट केसेस रहना ज़रूरी है, ऐसा ना. यस. Yes, sir. टेस्टिंग तो केसेस. इसके लिए हम लोग इससे सबसे पहले प्रायोरिटी देख के हम लोग आज इसके ऊपर इसके लिखेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग टेस्ट केसेस ऑन दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है. इसके ऊपर टेस्ट केस लिखेंगे. जैसे कल इसका ये हो गया, कंप्लीट हो गया कोडिंग, तो इसके ऊपर हमें एग्जीक्यूट करना है, टेस्टिंग करनी है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर. टेस्टिंग विल स्टार्ट आफ्टर कोडिंग, ठीक है. तो ये टास्क है. तो आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ मैं इस रिक्वायरमेंट के ऊपर. सो कल मैं जैसे ही आऊँगा, समझो मेरा लॉगिन है 9 to 6, माय लॉगिन टाइम इज 9 to 6, ठीक है.
अभी मंडे था, ये मंडे की बात कर रहा था मैं, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग मतलब मंडे का। मंडे को मैंने क्या किया, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ऐड मतलब चेक किया। उसके बाद में मेरे कौन कौन से स्प्रिंट में कौन कौन से टास्क है, उसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ ये देख लिया। उसके अंदर के ये जो रिक्वायरमेंट थी पहले वाली, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने टेस्ट केसेस भी लिख ली, मतलब लिख लिया उस दिन के लिए। मैंने दूसरे दिन लॉगिन किया, ट्यूसडे को लॉगिन किया, और मैंने देखा मेरा लॉगिन जो है वो 9 बजे स्टार्ट होना, 9 से 6। ओके, तो मैंने जो कल लिखे वाले टेस्ट केसेस रहेंगे, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट है। एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं वो मैंने चेक किए, और वो मुझे मेरे तरफ से एकदम एक्यूरेट लगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो अभी आ जाओ आप लोग समझो क्यूए एनालिस्ट हो। क्यूए मतलब एकदम सीनियर भी नहीं हो आप, जूनियर हो, ठीक है। सीनियर नहीं हो, जूनियर क्यूए हो। जो टेस्टिंग करने वाला है ना, उसे क्यूए का प्रोफाइल है, क्वालिटी एनालिस्ट या फिर टेस्ट एनालिस्ट, ठीक है, ये बोला जाता है। तो क्यूए का प्रोफाइल है, तो आप एकदम लोएस्ट पे हो। तो ये टेस्ट केस जो आपने लिखे हुए हैं वो आपके सीनियर को भेजोगे रिव्यू करने के लिए। तो वो सीनियर कौन हो सकता है, आपका वो सीनियर भी हो सकता है, आप टीएल को भी भेज सकते हो, टीम लीड को भी भेज सकते हो, और आप आपके मैनेजर को भी भेज सकते हो। तो जो आपके टेस्ट केस लिखे वाले रहेंगे, वो आपके टेस्ट केस क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू। उसमें अगर कोई चेंजेस रहेंगे तो वो चेंजेस आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है नहीं। तो आपने वो अगर चेंजेस कर लिए, तो वी आर रेडी विथ द टेस्ट केसेस, ठीक है नहीं। तो आपने ना कल 6 बजे तक, मंडे के पहले दिन तक आपने ये टेस्ट केस लिखे। उसके बाद में आज आपने रिव्यू के लिए सेंड किए। तो आपका जो है ना एक मीटिंग होता है, हर डे होता है वो, उसे बोला जाता है डेली स्टैंड अप या फिर सिंकअप मीटिंग। क्या है इसका नाम, डेली स्टैंड अप स्लैश दिख रहा है आप। यस। तो इतने टाइम में ना मैं ये समझा रहा था आपको, ये सब लिख के। तो अगर स्क्रीन स्टक हुई थी तो मुझे बताना चाहिए था आप लोगों ने, ठीक है, जाने दो। डेली स्टैंड अप मीटिंग यहाँ पे डेली सिंकअप रहेगी। इसका टाइम डेली फिक्स होता है, ठीक है। इसका टाइम अगर आपका 9 बजे लॉगिन होता है तो वो 10 बजे या फिर 9:30 बजे के आसपास रहेगी। 10 AM में डेली मीटिंग रहेगी आपकी, ठीक है। तो 10 बजे डेली स्टैंड अप रहेगी। तो इस मीटिंग में क्या कौन कौन अवेलेबल रहेंगे वो देखते हैं, ठीक है। डेली स्टैंड अप मीटिंग जो एवरीडे होने वाली है, जिसे हम डेली स्टैंड अप या स्क्रम मीटिंग या सिंकअप कॉल भी बोल सकते हैं। इसमें ड्यूरेशन रहेगा 50 मिनट्स टू 30 मिनट्स, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 50 to 30 मिनट्स रहेगा, और ये रोज़ होने वाली मीटिंग है। इसमें आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, डिज़ाइनर्स, डेवलपर मतलब डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम मतलब डेवलपर टेस्टर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो इस मीटिंग का मोटिव क्या रहेगा, हम लोग ये मीटिंग क्यों करते हैं। तो इस मीटिंग में ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर यू डूइंग टुडे,
what you did yesterday or is there any roadblock or challenges you are facing। हर ये क्वेश्चन जो है, पहले जो क्वेश्चन है जो तुम्हारा स्क्रम मास्टर रहेगा, ठीक है, ये स्क्रम मास्टर रहेगा, ये स्क्रम मास्टर आपको पूछेगा, ठीक है, और ये रोज पूछने वाला है कोई क्वेश्चन कि आपने कल क्या किया है। तो आपने कल क्या टास्क किया था, yesterday I have wrote the test cases on first requirement, ओके, ये बताना पड़ेगा आपने जो जो किया है। yesterday I have attended, तो आपने अगर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग अटेंड किया होगा तो आपको बताना है कि दिन में मैंने क्या किया है। तो जस्ट टू गिव यू आइडिया अबाउट व्हाट यू डिड yesterday, ये जो है आपने कुछ किया होगा तो आपको हर मेंबर को, हर टीम के मेंबर को पता चलेगा, आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी, ठीक है। तो उस मीटिंग में हम लोग बताएंगे कि मैंने कल स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग अटेंड की थी, उसके बाद में स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग को अटेंड करने के बाद मैंने जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केस लिखने शुरू कर दिए है। तो मैंने कल मेरे टेस्ट केस लिखने कंप्लीट हुए हैं। सो टुडे मैंने जो है मेरे टीम लीड को ये रिव्यू के लिए टेस्ट केस भेजे हैं। सो जब तक मुझे रिव्यू के टेस्ट केस के लिए चेंजेस नहीं आते हैं तब तक मैं सेकंड रिक्वायरमेंट जो है इसके ऊपर मैं टेस्ट केस राइट कर सकता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। और इन केस अगर आज मुझे बिल्ड मिलता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए तो मेरा टेस्ट केस रेडी है। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट मुझे मिल जाएगी, जैसे ही मुझे न्यू बिल्ड मिल जाएगी, न्यू बिल्ड मतलब क्या है कि नया कोड जो डेवलपर ने फिक्स किया होगा, डेवलपर ने कोड डेवलप किया होगा फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करूँगा ना उसके ऊपर, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारा ये तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये सब जो है व्हाट यू डिड yesterday और व्हाट यू आर डूइंग टुडे, ये सब लोगों को पूछा जाता है, इवन यूर जो भी उस कॉल में रहेगा। बिजनेस एनालिस्ट छोड़ के आपका जो मैनेजर्स रहेंगे, आपके जो सीनियर्स रहेंगे, जूनियर्स रहेंगे, डिजाइनर्स रहेंगे, एवरीवन शुड टेल कि हमने कल क्या किया था और हम आज क्या कर रहे हैं। तो सब हर एक लोग अपना अपना अपडेट देगा कि मैंने कल क्या किया था और मैं आज क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें वो पूछेंगे कि इज देयर एनी रोड ब्लॉक और चैलेंजेस यू आर फेसिंग, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, किसी को कुछ चैलेंजेस है क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि कभी यह होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है, तो हमें उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, अल्टरनेटिव क्या है, या फिर वो प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट, मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या, या आपको कोई रोड ब्लॉक्स है क्या, चैलेंजेस है क्या। सो दिस इज द सेकेंड मीटिंग, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये आपकी जो है थर्ड रिक्वायरमेंट है, ये थर्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर आप टेस्ट केसेस लिखने शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपने यूजर स्टोरी भी रीड कर ली, यूजर स्टोरी भी रीड कर ली, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस रिक्वायरमेंट टेस्ट केस लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिक्वायरमेंट में मुझे क्या करना है, तब आप क्या करोगे। हम्म? ठीक है, इफ़ यू डोंट नो द यूजर स्टोरीज, और आप अगर यूजर स्टोरी रीड करके भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिक्वायरमेंट क्या है या फिर उसमें क्या करना है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रूमिंग सेशन लेंगे, ग्रूमिंग सेशन कंडक्ट करेंगे। तो ग्रूमिंग सेशन का मीनिंग क्या होता है, या फिर ग्रूमिंग सेशन क्यों नेसेसरी है, ठीक है। तो ग्रूमिंग सेशन मतलब क्या है, देखो ये है ग्रूमिंग सेशन, ये जो मीटिंग है इसमें हमारे जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है,
अगर हमें रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना है और हमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो क्लियर नहीं है तो हम लोग इसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं क्या? एज अ डेवलपर उसके ऊपर कोडिंग नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। टेस्टर को टेस्ट केसेस लिखने हैं, तो टेस्ट केस लिखने के लिए उसके रिक्वायरमेंट क्लियर इस नहीं। केस हाँ बोलो। ठीक है, कोडिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट उसको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही, टेस्टर को भी समझ में नहीं आ रही, तो उस टाइम पे आप जो है ग्रूमिंग सेशन कर सकते हो। ग्रूमिंग सेशन में क्या है, जिसने भी वो यूजर स्टोरी क्रिएट की है वो कौन रहेगा, प्रोडक्ट ओनर रहेगा, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट ओनर के साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हो और आपके जो कुछ भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे इस सेशन में। क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको कल मतलब आज ही क्या करना है, इसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखने हैं और डेवलपर को कोडिंग करनी है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है इसके रिक्वायरमेंट जो है ये जान ले। तो इसके लिए हम लोग ग्रूमिंग सेशन रखते हैं। तो ग्रूमिंग सेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो जो होता है 30 मिनट्स से लेके 1 आवर होता है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें आ सकता है डेवलपर टीम, टेस्टर टीम और डिज़ाइनर। जो कुछ भी उस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग इस ग्रूमिंग सेशन में अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग यूजर स्टोरीज इफ इट इज़ नॉट क्लियर टू अस। तो इसका मोटिव क्या है कि अगर वो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं रहेगी तो जस्ट टू मेक श्योर कि हमें सब क्लियर होना चाहिए और तो हमें सब आता है उस रिक्वायरमेंट के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रूमिंग सेशन लेते हैं। तो ये जो मीटिंग है ये एक बार या फिर बहुत बार हो सकती है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं रहेगी आप ग्रूमिंग सेशन ले सकते हो, ठीक है नहीं। सो इस मीटिंग का यूज़ क्या रहेगा, आपको जो कि रिक्वायरमेंट है अगर क्लियर नहीं है तो वो रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है आपके रिक्वायरमेंट के, वो डाउट आपको क्लियर करके लेने पड़ेंगे, इसीलिए ये ग्रूमिंग सेशन होता है। सो इन बिटवीन कभी भी हो सकता है, ठीक है। सो मेरे तरफ से अगर बोलोगे तो आप स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग जो रोज़ होता है, थर्ड मीटिंग होता है ग्रूमिंग सेशन जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले दिन भी हो सकता है, फिर स्प्रिंट खत्म होने के समझो सेकेंड वीक में वेंसडे को भी हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं तो कभी भी हो सकता है, और एक बार नहीं हर बार, मतलब कभी भी हो सकता है वो, ठीक है। रूमिनेशन क्लियर है, किसी कोई डाउट? ठीक है, हम कंसिडरिंग इट एज नो। उसके बाद में आता है फोर्थ मीटिंग जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो है और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग जो है, ये दोनों मीटिंग जो है एंड डे ऑफ द स्प्रिंट होती है और ये जो है एक ही बार होती है, एक स्प्रिंट होती है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ठीक है। ये जो मीटिंग होती है, ये दोनों मीटिंग जो है लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट होती है। तो देखो, हमने जो कुछ भी अभी प्लानिंग किया था 5 रिक्वायरमेंट का, ठीक है, जो हमने किया था फर्स्ट डे में स्प्रिंट प्लानिंग सेशन के टाइम, स्प्रिंट प्लानिंग सेशन के टाइम आपको सब रिक्वायरमेंट पता थे, ठीक है। अभी आपका जो टाइम है
वो आया है लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट में। मतलब आपने जो है इन बिटवीन 11 से लेके 21 तारीख तक आपने पांचों रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, टेस्टिंग किया है। ओके, सो जब डेवलपमेंट टेस्टिंग दोनों हो गया है तो लास्ट के दिन में हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग रखेंगे। तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या रहेगा, हम लोग रिव्यू देने वाले हैं हमने जो कुछ भी काम किया है। ठीक है, हम लोग डेमो देंगे या फिर रिव्यू देंगे, डेमो और रिव्यू। तो अगर कोई टेस्टर ने टेस्टिंग किया है या कोई डेवलपर ने कुछ डेवलप किया है, ठीक है, इस मीटिंग में, ठीक है, इस मीटिंग का ड्यूरेशन भी 1 आवर तक या फिर 30 मिनट्स तक हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी डेवलप किया है डेवलपर और टेस्टिंग टीम ने, डेवलपर ने डेवलप किया होगा, कोडिंग किया रहेगा, टेस्टर ने कुछ टेस्टिंग किया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मीटिंग में आते हैं, जो कोर टीम मेंबर्स रहेंगे वो सब कोर टीम मेंबर्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस मेंबर में इस टीम मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जितने भी 5 रिक्वायरमेंट्स है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेमो देंगे सबके सामने। तो ये देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से कोडिंग की है, डेवलपमेंट टीम ने किस तरह से कोडिंग की है और टेस्टिंग टीम ने किस तरह से टेस्टिंग की है। तो जो 5 रिक्वायरमेंट रहेंगे वो 5 रिक्वायरमेंट ठीक से काम कर रहे हैं, इसके अंदर कोई अभी डिफेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एरर नहीं है, तो दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। और ये जो है हम इंटरनली डेमो कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल टीम मेंबर्स के साथ कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स, डेवलपर टीम बोलता हूँ सीधा, ठीक है, डेवलपर टीम कामा टेस्टिंग टीम, डिज़ाइनर्स। तो इतने सारे जो मेंबर्स रहेंगे इसके सामने हम डेमो देंगे। ठीक है, इंटरनल डेमो बोला जाता है। तो जस्ट मेक श्योर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इसके लिए क्या क्या हमने किया है, किस तरह से ये किया है, डेवलपमेंट किया है, किस तरह से टेस्टिंग किया है। सो एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, मतलब लास्ट स्प्रिंट के लास्ट के डे में क्या होगा, ये सब मीटिंग में आधे एक घंटे में हम लोग रिक्वायरमेंट बताएंगे, एक दूसरे को डेमो देंगे रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है नहीं, अभी आपने स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हो गया, आपको सबको डेमो दे के हो गया। ठीक है, तो आपका काम खत्म हो गया स्प्रिंट का, है कि नहीं, ऐसा ना। हम्म? तो फिर स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में क्या काम रहेगा, तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में हमने जो काम किया है, ठीक है, जिसका डेवलपमेंट किया है, कोडिंग किया है, टेस्टिंग किया है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिज़ाइनर, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, ठीक है, ये सब आके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट वी हैव डन गुड इन दिस स्प्रिंट, हमने इस स्प्रिंट में क्या अच्छा काम किया है। क्या बुरा काम हुआ है, क्या अच्छा काम हुआ है, ये हम लोगों को पूछा जाएगा। क्या बुरा काम हुआ है ये पूछा जाएगा। और इज देयर एनीथिंग वी हैव टू डू इन नेक्स्ट स्प्रिंट। ठीक है, एनी सजेशन so we can implement in next sprint। ठीक है, हम लोग स्प्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो स्प्रिंट के ऊपर जब काम करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी, ठीक है नहीं।
ऐसा ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है, कुछ बुरी चीज़ें होने वाली है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर एक मेंबर को पूछा जाएगा, हर एक डेवलपर को, हर एक टेस्टर को, ठीक है, मैनेजर्स को, हर एक को पूछा जाएगा कि आपको इस स्प्रिंट में क्या गलत लगा। सो एज अ टेस्टर आपको टेस्टिंग करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिला, ठीक है, नॉट गेट इनफ टाइम टू टेस्ट। अभी ये टेस्ट करने के लिए क्यों टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी उसका डेवलपमेंट ही मुझे थर्सडे को मिला है। मतलब उसका जो टेस्टिंग करने के लिए मुझे टाइम जो है बहुत कम मिला, क्योंकि थर्सडे को मुझे वो डेवलपमेंट करके मिला, तो मैंने थर्सडे को उसका टेस्टिंग किया, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ और मैं इसको इतनी अच्छी तरह से टेस्ट नहीं कर पा रहा है जितना कर सकता था, ठीक है। तो मेरे तरफ से लगता है कि मुझे जो टेस्टिंग के लिए है वो ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या हुई है आप बोल सकते हो कि हमने टाइम पे डिलीवरी की है प्रोडक्ट की। मतलब क्या है कि डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हुई है फ्राइडे के पहले, है कि नहीं, बिफोर फ्राइडे। अगर किसी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, डेवलपमेंट टीम को, टेस्टिंग टीम को। तो ये क्या है, अच्छी बात है कि एवरीवन वाज हेल्पिंग ईच अदर्स, है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे, डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मतलब मदद कर रहे थे अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर डेवलपर का कुछ बग ये नहीं हुआ है, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बग कैसे है, वो क्या बग है वो एक्चुअली, तो टेस्टर उसे हेल्प कर रहा है। अगर टेस्टर को कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही थी, तो आप डेवलपर को भी पूछ सकते हो, राइट, कम्युनिकेशन अरेंज करने के पहले, है कि नहीं। तो डेवलपर को भी पूछ रहे हो कि क्या मतलब मुझे ये रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, है ना। तो एवरीवन आपको हेल्प करेगा, डेवलपमेंट टीम हेल्प कर रही थी, टेस्टिंग टीम हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, बिफोर फ्राइडे हुए हुआ है और एक दूसरे को सब लोग हेल्प कर रहे थे, ये हमारे लिए। हाँ, फिर टाइम में डिलीवरी हुई है हमारी, ये गुड है, गुड हुआ है हमारे स्मिथ में। फिर इसमें क्या हुआ है, बैड क्या हुआ है आपके एंड से, कि आपको एक इनफ टाइम नहीं मिला है। तो जितने भी डेवलपर्स रहेंगे, टेस्टर्स रहेंगे, हर एक मेंबर्स अपने अपने पॉइंट बताएंगे। तो इसके बाद में जब आप क्या गुड, मतलब अच्छा क्या हुआ है, बुरा क्या हुआ है स्प्रिंट में, अगर आप बताओगे तो उसके ऊपर हम लोग जो है नेक्स्ट स्प्रिंट के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो हम ऐसा बनाएंगे कि जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है वो वेंसडे के पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब वेंसडे और थर्सडे जो है हमें एक बफर टाइम मिलेगा टेस्टिंग के लिए। अगर वेंसडे को ख़त्म हुआ है और थर्सडे को बग भी आ रहे हैं तो बग हम लोग थर्सडे को देखेंगे ना, है कि नहीं, ऐसा ना। तो हम लोग जो है थर्सडे को बफर रख रहे हैं। अगर कुछ हम लोग रिक्वायरमेंट को डेवलप करते हो, कुछ एग्जीक्यूट करते हो, कुछ डिफेक्ट भी मिल गए, कुछ प्रॉब्लम भी आ गए, एरर भी आ गए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा टाइम लेने वाले हैं, हम लोग थर्सडे लेने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक दिन बफर में रहेगा, तो थर्सडे तक हमारा पूरा बिल्ड स्टेबल हो जाएगा और फ्राइडे को हम लोग अच्छे से रिलीज दे सकते हैं, ठीक है नहीं, एप्लीकेशन को। So these are the 5 meetings which will happen in sprint.